All right, so we are going to start off with question number 139. ये question number 139 देख के क्या चीज़ जहन में आ रही है? ट्रांसफार्मर. एक आपके पास प्राइमरी कॉइल है, एक आपके पास सेकेंडरी कॉइल है, एक में आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स कम है, दूसरे में you have a greater number of turns. So what type of a transformer do you think is this? Step up, step down? It's a step up because secondary के अंदर coils जो है वो क्या है, ज़्यादा turns हैं, primary के अंदर turns जो है वो कम है. क्या ये transformer actually काम करेगा? क्या ये transformer actually काम करेगा? Probably not. उसका reason the source is a direct current and not an alternating current. सही है. तो again when you are reading a question and you have your first view of the diagram, वो डायग्राम को जहन में रख के जो है जनरली कुछ assumptions बना लिया करो. They are gonna help you solve a particular question. जी सुभान क्या कह रहे हैं? Step up because यहाँ पे देखो आपके number of turns काफ़ी कम है. So over here number of turns काफ़ी कम है, over here number of turns काफ़ी ज़्यादा है. सही है. So now figure 9.1 shows two coils of insulated wire around an iron ring. Coil A is connected to a battery and a switch. Switch is open. Coil B is connected to a sensitive center 0 voltmeter. Probably यहाँ पे हम लोग जो है वो so the Faraday's experiment that we did in class कि switch on करने से deflection आ रहा है, switch off करने से फिर deflection आ रहा है. Probably it may be a question related to that. But चलें. The switch is closed. There is a current in coil A. On figure 9.1, mark the direction of current in coil A. Switch is closed. There is a current in coil A. A के अंदर direction of current जो है वो क्या होगा? It's going to be in this direction. यहाँ से current जो है वो it goes to the solenoid. यहाँ से current बाहर आ जाएगा. All right. Then draw the magnetic field lines produced in the iron ring. So in what direction are going to be the magnetic field lines? So up this right here, the coil A makes the iron ring a solenoid. Solenoid की direction of magnetic field कैसे निकालेंगे? How do you figure it? नहीं, right hand rule. So the fingers curl in the direction of current and thumb points in the direction of north. All right. So in this case, the current is going to be from behind the ring to the front, या from front of the ring to behind. Behind the ring to the front. So अब ring के पीछे से आपकी करंट जो है रिंग के पीछे से आएगा फ्रंट पे. So it's going to go something like this. And if it goes something like this, then the north is pointing downwards. Means यहाँ पर जो है north होना चाहिए, यहाँ पर जो है वो south होना चाहिए. North से magnetic field lines कहाँ जाएंगी? बाहर. South से magnetic field lines कहाँ जाएंगी? Inside. So you essentially have got magnetic field in this direction, यहाँ से outwards, यहाँ से inwards. You've again got magnetic field in this direction. तो ये सर्कुलर आपकी डायरेक्शनल लाइंस बन जाएंगे. लेट मी ड्रॉ देम अ लिटिल बिट मोर क्लियरली. So ये आपकी magnetic field lines होंगी and of course the magnetic field lines are going to be pointed away from the north and will be pointed inside towards the south. जल्दी बना लो बेटा. कॉपीज़ निकालो सुभान. जल्दी कॉपीज़ निकालो, बनाना शुरू करो. Everyone quickly. बेटा एवरीवन जल्दी, बातें कम. बेटा डन. कौन करेगा?
Burhan, Subhan. All right. Figure 9.1. Mark the direction of current in coil A. Done. Draw the magnetic field lines produced in the iron ring. Done. As the switch is closed, the voltmeter deflects to the right and returns to 0. Explain why there is a deflection on the voltmeter. तो deflection का reason क्या था? Deflection's reason was कि as the current flows through coil A, the magnetic field suddenly increases. Magnetic field increase होगी, it's going to induce a current. But because उसके बाद magnetic field constant हो जाता है, current constant हो जाता है, तो there is going to be no more induction, and hence you only see a deflection, and then it returns back to 0. All right. So current in coil A produces magnetic field due to electromagnetic induction current is induced in coil B. ठीक है, जल्दी लिखो बेटा. 138, 139, sorry. 139. So again, B part 1, marking scheme says that magnetic flux field cuts or field flux changes induces EMF voltage current in B. So that's pretty much what it is. ठीक है, जल्दी कीजिए बेटा. So the switch is, पहले switch का क्या scene था? The switch is closed, the voltmeter deflects to the right, then returns to 0. The switch is open. State and explain what happened to the deflection on the voltmeter. पहले right पे deflect हो रहा था, अभी right पे होगा. या अब कहाँ जाना चाहिए? Left पे हो जाएगा. Why? Because पहले magnetic field increase हो रही थी. This time magnetic field goes down. Magnetic field decreases. Magnetic field decrease होने की वजह से the induced EMF is going to be, या induced current is going to be in opposite direction. ठीक है? So हम लिख सकते हैं in part 1, magnetic field increased, hence deflection to the left, deflection to the right. When switch is opened, beta jaldi likho. When the switch is opened, magnetic field decreases and induces current in opposite direction. Deflection to the left. It's a very good idea कि आप correlation बनाएं कि भाई पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है. And that's why we've mentioned one as well कि one के अंदर magnetic field increase हो रही थी, hence deflection to the right. When the switch is opened, magnetic field decreases and the induced current is in the opposite direction. और उससे क्या होगा? The deflection is to be at the left. हाँ, अब वो क्वेश्चन ने बताया कि डिफ्लेक्ट राइट पे करना है. मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज क्यों हो रही है? बिकॉज यू क्लोज द सर्किट. करंट इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी. जब आप स्विच ओपन करोगे तो करंट कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी. Without changing the coil A, state 2 changes to the apparatus that causes a greater deflection of the voltmeter.
आपको डिफ्लेक्शन इंक्रीज करनी है, तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? विदाउट चेंजिंग ए, इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोर्स, सही है. सो इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी कॉइल बी में, कॉइल बी में यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, आपका डिफ्लेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. व्हाट एल्स? वो तो ऑलरेडी आयरन कोर आपके पास है ना, यू हैव एन आयरन रिंग. करंट तो कॉइल ए कंट्रोल कर रहा है ना, तो यू कैन नॉट इंक्रीज द करंट without changing coil A. The question says without changing coil A, state 2 changes to the apparatus that causes a greater deflection in the voltmeter. पढ़ो क्या लिखा हुआ है. So this one right here. So more turns in coil B. We've already written that. Larger voltage current of battery. Now again, so the question's a little confusing over here. Question ने बोला कि coil A के अंदर चेंज नहीं होना चाहिए, अब वो बैटरी चेंज हो सकती है, ठीक है. सो दैट कुड बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग, तो हम इस पॉइंट को वैसे भी छोड़ देंगे. स्मॉलर रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स, स्मॉलर रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स कैसे करोगे? यू यूज़ अ थिकर वायर, सही है. थिकर और शॉर्टन आयर रिंग, जो रिंग है उसका डिस्टेंस आपने क्या कर दिया, या आपने बड़ी रिंग की जगह पे क्या यूज़ कर ली? यूज़ अ शॉर्टर रिंग. शॉर्टर रिंग से क्या होगा? द फ्लक्स फील्ड लाइंस आर गोइंग टू बी, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग टू बी अ लॉट मोर डेंस, एंड उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग होंगी, और आपका जो इंड्यूस्ड करंट होगा या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा? वो ज़्यादा हो जाएगा. कॉइल चेंज नहीं हो रहा ना, कॉइल ए स्टेज द सेम, नंबर ऑफ टर्न्स, बैटरी, एवरीथिंग स्टेज द सेम, सही है. सो इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, डिक्रीज रेजिस्टेंस. By using thicker wires. सही है. So decrease resistance by using thicker wires. All right. Done. So that was 139. अच्छा अभी भी continued है on towards 140 as well. The battery in 9.1 is replaced with an alternating supply. The output from the coil B is used to power a lamp that is a long distance away. Each lead from coil B to the lamp has a resistance of 2.5 ohms. These leads are represented by two resistors shown in figure 9.2. ठीक है, all right. So जो आपका कनेक्शन है, जो कनेक्टिंग वायर है, उसको शो कर दिया है विद रेजिस्टेंस. कनेक्टिंग वायर का भी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया है. And then of course it's connected to the lamp. The output voltage of B is 240 volts and the current in the circuit is 1.6 amperes. Calculate the electrical power produced by coil B. कैसे पावर आउटपुट कैसे निकालोगे? पावर क्या होता है? P is equals to V is equals to IR होता है. P is equals to VI हो गया. वोल्टेज आपका 240 है and current is 1.6. तो this right here is going to be 24 times 16. कितना होता है? जल्दी. नहीं, 376, सॉरी, 384. 384 watts. All right, so 384 watts is going to be the power. ठीक है. अच्छा, calculate the total power loss to the lead in the leads to the lamp. So ये जो आपके connecting wires हैं, इनमें कितना power जो है वो lose हो जाएगा? कैसे निकालोगे? पावर लॉस का क्या फॉर्मूला है? ट्रांसफॉर्मर्स में ही मैंने बताया था. पावर लॉस का फॉर्मूला क्या है? इट्स I स्क्वायर्ड R. पावर लॉस का फॉर्मूला क्या है? P is equals to I स्क्वायर्ड R. I हमें पता है 1.6 एम्पेयर्स. रेजिस्टेंस हमें पता है कि इट्स 2.5. ऑल राइट. सो 1.6 का स्क्वायर कितना होगा? दैट्स 2.56 टाइम्स 2.5.
is going to give me somewhere in the vicinity of 6.3 something. 6.32 है शायद. $6.3 आ रहा है आंसर. जल्दी देखो बेटा, जल्दी कैलकुलेट करो. 1.6 squared times 2.5. वालेकुम अस्सलाम. 1.6 squared times 2.5. मोहम्मद कितना आ रहा है? 6.4 आ रहा है. All right, so it's 6.4 watts. अरे ये पावर लॉस है. हाँ, पावर के लिए भी यूज़ हो सकता है, बट ज़्यादातर पावर ट्रांसमिटेड के लिए VI यूज़ होता है, लॉस के लिए I²R यूज़ होता है. So the power loss is going to be what? That's going to be 6.4 watts. यहाँ तक क्लियर है बेटा? क्या क्या हुआ? क्या है ये? बैठ जाओ. मार्क्स पता है कितने हैं? मार्क्स पता है कितने हैं हेड बॉय? कितने हैं? कितने में से? तो आप कब सीरियस लेंगे बेटा? या वही बड़े भाई वाला हाल चाहिए? All right, everyone gets this. 6.4 watts. So again, power transmitted generally is P is equals to VI, and power जो है वो loss जो है that's generally I²R. Whenever you have power transmitted through lines, the power loss through the lines is going to be what? That's going to be I²R, and power transmitted is going to be VI. सही है. अगर आप नोट्स के अंदर देखें तो ट्रांसफार्मर्स के आगे जो कैलकुलेशन शो हुई हुई है पावर लॉस की, इट्स यूजिंग द सेम I²R for power loss and VI for power transmitted. Alright, so that was the end of 139 and 140. Moving on towards question number 141. Figure 6.1 is a graph of current against potential difference for length of a wire. Now, let's say for example, so this is something that you need to know. Okay, if I want to figure out the resistance of this conductor, if I want to figure out the resistance of a conductor using the IV graph, तो कैसे निकालोगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस मुझे चाहिए. तो रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? V इज इक्वल्स टू IR लगा सकते हैं. नहीं, इट्स नॉट ओनली द ग्रेडियंट, इट्स 1 अपॉन द ग्रेडियंट. सही है. इफ़ यू हैव अ VI ग्राफ, अगर आपके पास VI ग्राफ है तो इन दैट केस योर ग्रेडियंट इज योर रेजिस्टेंस. लेकिन अगर आपके पास उल्टा ग्राफ है, IV ग्राफ है, now because your axes have been reversed, तो आपका gradient जो है it's no longer going to be R, it's going to be 1 upon R. That's what you need to remember. Make sense to everyone? ठीक है. Now the metal wire obeys Ohm's law. State Ohm's law in words. 149, 141. So Ohm's law का statement again. Remember that these statements are going to be at least 5 to 10 marks. At least 5 to 10 marks are going to be these statements, laws, definitions and all of that stuff. सही है. तो याद रखना बहुत ज़रूरी है. एक बहुत बड़ा चंक है आपका जो statements के ऊपर. हाँ बोलो. Current is directly proportional to yes, proportional to the potential difference applied given external conditions do not change. So what's the Ohm's law? Ohm's law is current is directly proportional to the potential difference applied given the external conditions do not change. Yeah. बेटा
जी स्टेट ओम्स लॉ इन वर्ड्स मतलब पूरी स्टेटमेंट देनी है, सही है। नहीं 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 नहीं, या आपको सो यू नीड टू रिमेंबर द वर्ड्स एग्जैक्टली, बिकॉज इफ यू ट्राई टू पुट इन योर ओन वर्ड्स यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, सही है। सो डोंट डेफिनेशंस लॉज, मेक श्योर कि डेफिनेशंस एंड लॉज सारे सिलेबस के आप एक पेज के ऊपर लिख लें, एंड मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दैट, और यू मेक श्योर दैट यू रिव्यू दैट पेज एवरी वीक, एवरी वीकेंड आप उस पेज कोड के ज़रूर रिव्यू करो। All right, so that's going to make sure that you're never going to get a definition wrong. Not formulas, definitions and laws. All right. I mean, मेरे पास ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, मेरे पास ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, formulas की लिस्ट, definitions की लिस्ट, laws की लिस्ट and everything. But मैं आपको भेजूँगा in my past 18 years of teaching, I've never seen कि जो चीज़ हाथ में थमाई गई है वो आप लोग कभी उठा के पढ़ोगे भी। इनफैक्ट जब भी मैंने कोई भी फॉर्मूला लिस्ट दी है या कोई भी डेफिनेशंस की लिस्ट दी है, 70% ऑफ द टाइम्स पीपल लूज इट एंड दे आस्क मी अगेन कि सर एक बार वापस से देते हैं, खो गई है, सही है। तो इस वजह से नहीं तो पिछले साल के बाद से जो है मैंने जो है वो, सो आई मेड इट कि I'm never gonna give out all of this stuff. Definitions चाहिए आप खुद लिखोगे, फॉर्मूलाज चाहिए आप खुद लिखोगे, सारे लॉज की लिस्ट चाहिए आप खुद लिखोगे, सही है। यू आर गोइंग टू राइट ऑल ऑफ देम बाय योरसेल्व्स। नहीं नहीं, आप नोट्स शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ेंगे, उसमें जितनी भी लॉज की स्टेटमेंट्स हैं वो एक एक करके लिखेंगे, जितने फार्मूलाज हैं वो एक एक करके लिखेंगे, जितनी डेफिनेशंस हैं वो एक एक करके लिखेंगे, सही है। नोट्स के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं ऑलरेडी, वो मैंने अलग से भी बनाई हुई है, बट मैंने तैयार कर लिया है कि आई एम नेवर गोना गिव इट टू स्टूडेंट्स, पीरियड। अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ एवरीवन, बस हमजा, वोरा वोरा, अच्छा तो फिर क्या है भाई, वोरा कौन है? वोरा नहीं आया, राठौड़, छोटू, अच्छा अब यहाँ पर आ जाइए एवरीवन। Calculate the resistance of the metal wire. How do you calculate the resistance? बुरहान, resistance का फॉर्मूला क्या है बुरहान? ये सही डेट होशियार है। पेपर में कितने मार्क्स आए? हाँ, कितने में से कितना परसेंट बनता है? हाँ, तुमसे पूछे? हाँ जी, सिर्फ 9 मार्क्स गए ना, बहुत कम गए, ज़्यादा जाने चाहिए थे। तो चुप करके बैठो ना फिर। हाँ अबे तो मुझे तुम लोगों को जलील करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी डन है, वो ऑलरेडी डन है, वो बात तो तय है, सही है, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हाँ ये YouTube पे जाएगा, all of this is going to go on YouTube, so please be very careful today of what you're saying. हाँ नहीं, no additions. हाँ वो मैं सुभान का नाम लेके बोल चुका हूँ, सुभान का। Everything's gonna go on YouTube, everything, no cuts and buts. आपके ए लेवल्स के एडमिशन से पहले ये क्लिप्स चलाए जाएंगे कि ये क्लास में बच्चे क्या करते थे। हाँ किया जा सकता है, अगर तुम लोग घर पे आओ सुकून से बैठ के जो है वो करेंगे।
लेकिन उसके लिए यू नीड एन आइडिया कि पॉडकास्ट अब ऐसा थोड़े घर पे आके जमा हो गए सारे, अब पॉडकास्ट करेंगे। तुम लोग खाने के अलावा और कुछ नहीं करोगे। हाँ, कोई टेंशन नहीं है, पॉडकास्ट में सब मिलके पियेंगे, टेंशन क्यों ले रहा है? हाँ, इट्स अ विंची। नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इतना टाइम मेरे पास नहीं है बेटा कि मैं, मेरे पास टाइम के टैक्स डालने का टाइम नहीं है। वो ये डाल रहा है, हैदर डाल रहा है, टाइम के टैक्स मेरे पास। आपका 1.5 हफ्ता हो गया बेटा, मेरे यूट्यूब नहीं डालने का टाइम ही नहीं मिला। आई एम गोइंग टू, पैसे मिलेंगे इनको। तुम फोटोग्राफी करो तो तुम्हें उसके पैसे मिलेंगे। ये तीनों, ऑल 3 ऑफ देम विल गेट पेड। वैल्यू ऐड करो, वैल्यू ऐड करो, वैल्यू ऐड करो, पैसे भी मिल जाएंगे। क्या चाहिए ये बताओ, चैनल के लिए क्या कर सकते हो? चैनल के लिए क्या कर सकते हो? चैनल के लिए क्या कर सकते हो? हाँ, कहाँ से लाओगे? हाँ, किसी दूसरे चैनल से फड्डा हो गया तो हमारा हेड बॉय काम आएगा। क्या करेगा हेड बॉय? अच्छा चलें, खैर वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। एवरीवन, एवरीवन, गयास, आवाज सही निकलती है जो भी है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ एवरीवन। वापस बोल दे गयास, क्या बोल रहा था? बोल 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 बोल। 2 बार तो बोल दिया, तीसरी बार भी बोल दे बेटा, सबको आवाज आनी चाहिए। ठीक है, दैट वाज मिस्टर गयास। अच्छा, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर। हाँ गयास बेटा, मेटल वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अब चलेंगे। अच्छा जी, सो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल्स टू आई आर को अगर रीअरेंज करेंगे तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I बेटा। सो V, अब ना हमें वोल्टेज दिया हुआ है ना हमें करंट दिया हुआ है, तो वोल्टेज और करंट निकलेगा कहाँ से? ग्राफ से। सो यू हैव द ग्राफ, ऑल राइट, एंड ग्राफ पे you can say that at 4 volts the current flowing is 0.2 amperes. All right. So नहीं बेटा, तुम लोगों का एक्सेंट अच्छा नहीं है, नहीं पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, सॉरी। That's going to be 20 ohms. असल में जो ओरिजिनली अमेरिका से आया होता है और उसका जो एक्सेंट होता है और जो फेक कर रहा होता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हाँ, क्या? नहीं, y 1/20, ये फॉर्मूला है ना। हाँ, क्लास होगी तो क्लासेस बात तो होगी ना यार। हाँ, अच्छा बेटा, कहीं जाना है? कहीं जाना है तो बैठ जा। अच्छा जी, now everyone, so a new wire is made from the same metal as the original wire. The two wires have the same length. The cross sectional area of the new wire is half the original wire. Cross sectional area is half. What's going to happen to
द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा. कितना बढ़ जाएगा? If the thickness is half, the cross sectional area is half, the resistance is also going to be double. Yes, good. Calculate the resistance of the new wire. तो resistance 20 था पहले, so this time around it's going to be 40 ohms. Draw a line to show how the current varies with potential difference for the new wire. हाँ देखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस अगर हाफ हो गया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल होगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल. सो 20 ओम्स था पहले, अब क्या हो जाएगा? 40 ओम्स. सो ड्रॉ अ लाइन टू शो हाउ करंट वैरीज विद पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द न्यू वायर. सो वी नो कि दिस टाइम अराउंड द ग्रेडियंट, द रेजिस्टेंस इज गोना बी हाफ. रेजिस्टेंस हाफ मतलब ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? डबल. या अगर इन दिस केस जैसे रेजिस्टेंस डबल हो रहा है तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. सो अगर यहाँ पर दिस राइट हियर इज गोना एंड एट 0.25, सो दिस टाइम अराउंड इट्स गोना एंड एट 0.125. इट्स गोना बी अ स्ट्रेट लाइन एंडिंग एट 0.125. सही है? आपका रेजिस्टेंस जो है दैट्स 1 अपॉन ग्रेडियंट. सही है? एट फर्स्ट योर ग्रेडियंट वाज सपोज टू बी 1 अपॉन 20. अग्रीड? अब आपका ग्रेडियंट रेजिस्टेंस डबल होने के बाद कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 40. ग्रेडियंट अगर हाफ हो गया तो आपका राइज ओवर रन, राइज जो है वो आधा हो जाएगा ना. पहले राइज 0.25 ओम्स का था, पहले राइज कितना था? 0.25 ओम्स का था. अब राइज कितना हो जाएगा? हाफ, विच इज 0.125. डज दैट मेक सेंस? ठीक है. सो दैट इज 141. 142 पे जाते हैं. So 142, a student connects a thermistor in series with a power supply and a fixed resistor. क्या टाइम क्या हो रहा है? So yeah, we have time. हाँ तो you can always just click कि कौन सा question कहाँ पर है. अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 142. A student connects a thermistor in series with power supply and a fixed resistor. In the space below, draw the circuit diagram of the apparatus. ठीक है. So power supply, fixed resistor and thermistor. ठीक है. तो आपका power supply आ गया. Power supply लिखा हुआ है. There is no battery or cell. Might as well just draw a battery. 2 cell बना देते हैं. Fixed resistor आ गया. You've got a fixed resistor, and then you've got a thermistor. So thermistor is going to be something like this. All right, ये आपका thermistor आ गया, and then you've got this right here. सही है? सो ये जो है ये आपका थर्मिस्टर आ गया. सॉरी मैंने यहाँ पे जो है वो गलत बना दी थी. सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. दिस राइट हियर इज अ रियोस्टैट बाय द वे. सो थर्मिस्टर जो है वो ये बनेगा. ऑलराइट, दैट्स योर थर्मिस्टर. थर्मिस्टर का यूज़ जो है वो बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो सकता है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे पास, सो यू नीड टू हैव एन अलार्म फॉर हायर टेम्परेचर्स, मतलब जैसे स्मोक अलार्म्स वगैरह के अंदर भी यूज़ हो सकता है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कोई टेम्परेचर चला रहे हैं एंड यू वांट अलार्म टू गो ऑफ एट अ सर्टेन टेम्परेचर, मतलब 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आई वांट द अलार्म टू गो ऑफ चाहिए. तो इन दैट केस व्हाट आर यू गोइंग टू डू? थर्मिस्टर लगा दिया. 150 के ऊपर थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इतना कम होगा कि अलार्म के सर्किट के थ्रू करंट जाना शुरू हो जाएगा, अलार्म बच जाएगा. एंड दैट्स जस्ट वन वे यू कैन यूज़ अ थर्मिस्टर. हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट यूजेस कैन बी दैट वे. ठीक है. सो अब यहाँ पे एक्सेंट जो है वो इंग्लिश की क्लास में मारना. यहाँ पर आ जाओ अभी. नाउ अ थर्मिस्टर इज व्हाट?
ये आपके पास डायग्राम आ गया. You've got the power, you've got a fixed resistor, and you've got a thermistor in series with a power supply and a fixed resistor. Good. Values for potential difference and current are given in 7.1. आपका potential difference is 8 volts. Potential difference across a fixed resistor is 4. EMF of power जो है वो कितना होगा? थर्मिस्टर और फिक्स रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल्स हैं वो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 12 volts. That's going to be the EMF. Current in the fixed resistor. सीरीज के अंदर करंट डिवाइड नहीं होता, तो अगर फिक्स्ड के थर्मिस्टर के अक्रॉस 0.018 है तो फिक्स्ड के अक्रॉस भी 0.018 ही रहेगा. इट्स गोना बी द सेम. डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? ये गाने क्लियर है? अच्छा, द मैक्सिमम. हाँ बोलो. अभी तो आया है. हाँ अरे स्कूल तो अभी आया ना. अच्छा, the maximum power rating of the thermistor is 150 milliwatts. Maximum power rating क्या है? 150 milliwatts. In blank spaces insert the values of the electromotive force of the power supply and current in the fixed resistor. वो हमने already लगा दिया. Calculate the power produced in the thermistor. Thermistor में जो power produced है वो हमें निकालना है. So it's going to be what? अरे बेटा पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इज इक्वल्स टू V इंटू I. V is how much? And current is how much? 0.018. All right. So in this case, what are we going to get? कितना मिल रहा है? 0.144 watts. सही है. अच्छा, नाउ वैसे जो आपकी रेटिंग है वो कितनी है? दैट्स 150 मिलीवॉट्स. 150 मिलीवॉट्स कितना होता है? दैट्स 150 इंटू 10⁻³ एंड दैट्स गोना बी इक्वल्स टू हाउ मच? 0.15. तो 0.15 रेटिंग है. 0.144 पे इस वक्त वो चल रहा है. The EMF of the power supply is double. Describe what happens to the thermistor. EMF आपने डबल कर दिया तो मतलब जो वोल्टेज थर्मिस्टर को मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. तो उसकी रेटिंग से ज़्यादा उसको पावर मिलेगी. एंड अगर उसकी रेटिंग से ज़्यादा उसको पावर मिलेगी देयर इज़ अ चांस वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा. इट बिकम्स टू हॉट और इट ब्लोज अप, फट जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह. सो बिकम्स टू हॉट, hot, burns, gets damaged. So again यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हैं. Does that make sense to everyone? ये गाने क्लियर है? ऑलराइट. मज़े की बात ये है ऑलमोस्ट वही सवाल जो है वो वापस आ गया. ये पास पेपर्स ही तो हैं बेटा. नहीं नहीं, ये एक्चुअली नहीं, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. लेकिन ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है. क्वेश्चन अलग है. जो ऊपर वाला सवाल था, जाइए जाइए जाइए, जो ऊपर वाला सवाल था दैट वाज व्हाट? दैट वाज मई जून 2012. वो डायरेक्ट करंट के साथ था. अब जो आपका सवाल है वो कौन सा है? दैट्स मई जून 2013 बट विद ऑल्टरनेटिंग करंट. सही है. तो खैर आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं 142 तक. सो दिस वाज 139 to 142. ऑलराइट. टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.